Hello everyone. Today we have to talk about some questions given your chapter number first related to in your index question. Clear? So keep it your mind on these questions and also listen the answer of this question very carefully. Clear? So let's start. Give reason for the following. There are some questions and you have to explain the reason of these questions. Clear? The first question is, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close. This is a very general observation, you know very well, that when your parents or your mother cooks the food in the kitchen, then you get the smell or the smell of the delicious food. Clear? From your drawing room or anywhere. Clear? Why? Because the hot food or when the food are started to prepare, then the particles which are present in the food are in a motion. Clear? By the process of diffusion. Clear? So the food particles, when we heat or when we start to prepare the food material from the raw food material, then the particles are gets in a motion and involved in the process of diffusion. Clear? So we can easily smell the hot sizzling food from a distance. Clear? Because the particles of the food material are in a motion and also involved in the process of diffusion. But in case of the cold food, it is not, because the particles, the kinetic energy of the particles is very low and they will not involve in the process of diffusion. So you have to get the smell of the cold food, you have to go close. Understand? So in this way you can write the answer once again. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close due to or because. Clear? The hot sizzling food, in hot sizzling food, the particles are in a motion and they involve in the process of diffusion. Clear? So we get the smell of the hot sizzling food. Clear? But in case of the cold food, the particles are not in a motion, they will not involve in the process of diffusion. So we have to smell the cold food, then we have to go to close. This is the answer or this is the reason of this question. Clear? Clear? Once again, you have to write the answer. I am just explaining in Hindi also. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो हॉट सिजलिंग फूड है, ठीक है ना, यानी जो हॉट फूड्स मटेरियल जो है वहां से हमें स्मेल बहुत आसानी से, काफी दूर से हम उसकी स्मेल को ऑब्जर्व कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए अगर कहीं अच्छा सा चाउमीन बन रहा है, बर्गर बन रहा है, तो उसका स्मेल दूर से ही आना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना? क्लियर? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो फूड मटेरियल, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है. वो किस में है? मोशन में. और मोशन में आने के बाद वो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और इसीलिए हमें उसका स्मेल, हम उसके स्मेल को ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर है ना? लेकिन अगर हम कोल्ड फूड की बात करते हैं तो कोल्ड फूड में ऐसा नहीं होता. तो आई थिंक आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा. पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं हॉट फूड मटेरियल्स के और डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. क्लियर है ना? नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो रिवर में या सी वाटर में या स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं, जो डाइवर होते हैं, वो वाटर को कट करके कैसे वे स्विम करते हैं, या वाटर को जब वो कट करते हैं तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर हम कंसीडर करेंगे. ठीक है ना? तो वहां पर
कंसीडर क्या करोगे, वहां पर आप कंसीडर ये करोगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, क्लियर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो स्पेस डाइवर क्या करता है, कट करता है, क्लियर। तो यहां पर जो रीजन है, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? So the observation is the intermolecular space. The diver cut the intermolecular space between the particles of the liquid, so he will able to cut the water. Clear? तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया है, गैस fills completely the vessel in which it is kept. आपको पता है कि गैस का जो शेप है या जो वॉल्यूम है दोनों फिक्स्ड नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा बलून ले लीजिए और एक बड़ा सा बलून ले लीजिए, तो दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों जो बलून है उसका शेप क्या है, अलग है। तो छोटे वाले बलून में भी आप एयर फिल कर रहे हो और बड़े वाले में, यानी गैस का कोई शेप डेफिनेट नहीं है, क्लियर है ना। इसीलिए जो गैस है वो जब भी किसी वेसल में फिल किया जाता है तो वो पूरे इंटायर स्पेस को कवर कर लेता है, क्लियर है ना। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो पहले बॉटम को कंप्लीट करता है, बॉटम को फिल करता है, क्लियर। तो आप यहाँ रीजन क्या लिखोगे, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल in which it is kept because gases have high kinetic energy and it will occupy the whole space in the container, clear. So we can say here that gas fills completely the vessel in which it is kept, and also the gases have high compressibility. Due to its high compressibility the gases will completely filled in the vessel, clear है। इसका रीजन आप इस तरह से लिख सकते हो, समझ में आया। पहले तो ये इंटायर स्पेस कवर करेगा और दूसरा इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी वो पूरा का पूरा कंटेनर जब तक फिल नहीं हो जाएगा तब तक गैस उसमें पूरा फिल होता चला जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक फिगर में यहाँ पर एक गैस का कंटेनर है, कोई सपोज ये कोई गैस का कंटेनर है और ऊपर से ये पिस्टन लगाया गया है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल किया गया है, क्लियर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से इन जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, इसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो गैस के मॉलिक्यूल्स की होगी, क्लियर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। तो मान लीजिए अगर इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स फिल किए गए हो तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जब काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कोलाइड करेंगे विथ ईच अदर, आपस में, क्लियर। ड्यू टू इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी the gaseous molecule or the particles of gases are collide with each other and also collide with the wall of the container, okay। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये आपस में तो कोलाइड करेंगे ही, इसके साथ साथ ये जो वेसल है या जो कंटेनर है उसके वॉल से भी कोलाइड करेंगे, समझ गए ना। और जब इनका कोलिजन गैस के कंटेनर के साथ होगा, सॉरी जो गैस जो उसके वॉल है, वॉल के जो कंटेनर है, ठीक है ना, उसके साथ होगा तो वहां पर एक प्रेशर अप्लाई होगा और उसी प्रेशर को कहेंगे प्रेशर ऑफ दी गैस, क्लियर है ना। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, मैं बताने जा रहा हूं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, एंड ड्यू टू इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी the gaseous molecules are collide with each other and also collide with the wall of the container, clear. And when the gaseous molecule will collide with the wall of the container, then it will exert on a pressure on the wall of the container and this pressure is known as pressure of the gas. तो ये इसका रीजन आप लिख सकते हो, क्लियर है ना। तो इसका रीजन आप इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट,
यहां दिया गया 5th नंबर, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड कब कहते हो? जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप और वॉल्यूम बोथ आर डेफिनिट, दोनों क्या हो? डेफिनिट हो, तभी हम उसको कहेंगे कि वो सॉलिड है। तो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनिट। क्लियर ना? इसका रीजन क्या होगा कि जो वुडन टेबल है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है? डेफिनिट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। क्लियर है ना? इसका रीजन आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट 6 नंबर दिया है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो हमारे चारों तरफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो इसमें हम अपने बॉडी को पूरा मूव करा सकते हैं, अपने हैंड को पूरा एयर में ऐसे रोटेट करा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर इसी को, यही हैंड अगर हमें सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, एक कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया हो, कोई एक कैबिनेट हो लकड़ी का, उसमें हमें अपने हाथों को पूरा ऐसे घुमाना हो, तो हम नहीं घुमा पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि वहां पर जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा। क्लियर है ना? तो इसके पीछे रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है ना? यहां आप लिखोगे वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। दिस इज बिकॉज in air, or air is a form of gases, clear, and gases have very high intermolecular space and very less intermolecular force of attraction, so we can easily move our hand in air, clear. But in case of solid, the solid have no intermolecular space and it has high degree of intermolecular force of attraction, so the karate expert or need to move the hand in the solid block of wood। ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है ना? रीजन यहाँ पर एयर में हम मूव कर रहे हैं अपने हैंड को, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो जीरो होता है, निग्लिजिबल होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है। क्लियर ना? इसलिए अगर सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में अगर हम अपने हैंड को रोटेट कराने जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें किसी कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये रीजन आप बता सकते हो।